Welcome students in biology class. In previous video we discussed about the transgenic animals and what is the benefit of transgenic animals. We also discussed about them. Today we discuss there is the one topic very important, that is the ethical issue. Ethical issue क्या होता है? Ethics includes rules of conduct by which a community regulates its behavior and decides as to which activity is lawful and which is not. ठीक है कि हमारे सोसाइटी के लिए कौन सा रूल बेनिफिट है, कौन सा नहीं. ठीक है, ये एथिक्स कल इश्यू के अंतर्गत आता है. Therefore, bioethics means obeying rules set by the society to regulate our activities in relation to the biological world. Okay? The main bioethical concern pertaining to biotechnology are briefly mentioned. There are different points, so we discuss one by one. You see, first point, introduction of a transgene from one species into another species violates the integrity of species. Okay. Second point, a biotechnology may pose unforeseen risk to the environment, including risk to the biodiversity. Thus, it could disturb the existing ecological balance. That is clear. ये डिस्टर्ब भी कर सकता है. थर्ड वन, ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इनटू द एनिमल्स डाइल्यूट्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस के जो कंसेप्ट उसको डाइल्यूशन कर देता है. फोर्थ वन, व्हेन एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स दे आर वर्चुअली रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ अ फैक्ट्री. Next point, use of animal in biotechnology causes great suffering to them. जो यूज़ करते हैं एनिमल को वो ग्रेट सफरिंग होते हैं. नेक्स्ट वन, इट इज़ द disrespectful to living beings and only exploit them for the benefit of human beings. Clear? So scientists cannot rule out the possibility of other biological damage. It can accidentally create new infection agent. Okay. Publics may very much concerned that certain companies are being granted patent for the products and technological that make use of genetic materials, plant and other biological resources that have long been developed by the former and indigenous peoples of a specific region or country. ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर रीजन में कुछ प्लांट होते हैं which are useful in different type of the disease or that is used in different type of formation of different product. In order to control this issue, Indian government has set up an organization, genetic engineering approval committee. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मीन्स GEAC, which makes all decisions regarding to validity of GM research and safety of introducing GMO for public services. ठीक है, पब्लिक के हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है और जो प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं उसकी वैलिडिटी को भी बताता है.
दैट इज द प्रोवाइडेड बाय रूल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट लाइक वी डिस्कस हियर वन इथिकल इशू के बारे में कह रहे हैं, दैट इज द राइट टू विदड्रॉ, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट, जिससे ले रहे हैं उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, एनोमिटी, फ्रीडम फ्रॉम द हॉर्न आर डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या अफेक्ट न करे इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। जो की है आपका एथिकल इश्यू के ये 5 की है। ओके, inside them there is first topic, that is the biopatent. What is the meaning about the biopatent? A patent is the right granted by government to an inventor to prevent other from commercial use of his invention. Okay, तो राइट ग्रांटेड ये दिया था गवर्नमेंट के थ्रू फॉर इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज न करे, ठीक है। वेन पेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर द बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड फॉर प्रोडक्ट derived फ्रॉम देम, दिस पेटेंट्स आर कॉल्ड बायो पेटेंट्स, ठीक है। तो जो पेटेंट किया गया है और ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एंड फॉर प्रोडक्ट derived फ्रॉम देम, और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, दिस पेटेंट आर कॉल्ड बायो पेटेंट, इसको बायो पेटेंट कहते हैं। दैट इज क्लियर। Primarily industrialized countries like USA, Japan, and members of European Unions are awarding biopatents. Clear? What can be biopatented? Biopatents are awarded for the following. Biopatent award किया जाता है following reasons के लिए. First one, strains of microorganisms. Second, cell lines. Third, genetically modified strains of plants and animals. Fourth, DNA sequence. Fifth, the protein encoded by DNA sequences. Sixth, various biological procedures. 7, production process. 8, product of biological entities. 9, application of biological product. So this is the different criteria by the biopatents that is used. Okay, cancel patent of natural product inventions. Patents on natural product invention are subject to attack unless all public knowledge about the species in question and its use are fully disclosed. For example, in 1995, patent use of turmeric in wound healing was cancelled in 1998. The new evidence established that use of turmeric to promote wound healing and had been known for the generation in India. Okay, तो बायो पेटेंट एक कराया गया था टर्मरिक का, टेक नेचुरली विच आर यूज फॉर द वुंड हीलिंग के लिए इंडिया में, लेकिन जो फॉरेन कंट्री के हैं ये टर्मरिक को यूज़ करके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसके मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल यूज करके या बाय पायरेसी मतलब चुरा करके ले जा करके उसका न्यू प्रोडक्ट बना करके वो इंडिया को ही कई गुना अधिक दाम पर उसको फिर उसको बेचते हैं। दैट इज क्लियर। व्हाट इज द लिमिट ऑफ बायो पेटेंट, लिमिट कितनी होती है? बायो पेटेंट्स हैव द फॉलोइंग 2 लिमिटेशन, इसका 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट, लिमिटेशन ऑफ टाइम, जो टाइम इसकी होती है कितने समय का होता है, दे आर वैलिड ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम। जो बायो पेटेंट कराया था किसी प्रोडक्ट का या किसी मटेरियल का, वो उसका लिमिटेड टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 7 और 14 ईयर्स अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, जो इंडियन
गवर्नमेंट के थ्रू एक्ट बनाया गया है, इसके थ्रू 7 से लेके 14 ईयर तक बायो पेटेंट कराया सकता है, यह पीरियड है। एंड लिमिटेशन ऑफ टेरिटरी, अ पेटेंट इज वैलिड ओनली इन द कंट्री बाय विच इट हैज़ बीन ग्रांटेड, ठीक है। और दूसरा जो पेटेंट होता है वो लिमिटेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कंट्री लेवल पर केवल उसी कंट्री में उसको यूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्ट को बाहर नहीं। क्लियर। सेकेंड वन इज द बायोपायरेसी। व्हाट इज द बायोपायरेसी? Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and can save time, efforts and expenditure during their commercializations. Okay. So biopiracy refers to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without the compensatory पेमेंट्स, ठीक है। तो बायोपायरेसी मीन्स एक तरह का चोरी हुआ विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन या विदाउट गवर्नमेंट ऑथराइजेशन और पीपुल विच आर डिस्कवर्ड या दैट इज द प्रोवाइड द रिसोर्सेस, बिना उससे पूछे ही उस प्रोडक्ट को यूज करना, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। The majority of industrialized nations are financially rich but poor in biodiversity and traditional knowledge in the comparisons to developing and underdeveloped countries. Okay. Some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill. It takes consideration of such issue including patents, term, emergency provisions, research and development entities. Okay. तो इंडियन गवर्नमेंट जो पेटेंट करती है डिफरेंट कंपोनेंट का ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज के बेस पर। ओके। Patent have been taken out of plants such as black peppers, basmati rice, Indian mustard, pomegranates, turmeric, neem, haldi, हर्रा, amla, bahara, ginger, castor, and so on. This is the Indian patents, the components. Okay. What is the controversy of Indian regarding the patent and biopiracy? What is the controversy against? When a patent is taken on plants and seed derived from the Indian biological resources, biopiracy occurs. Challenging and stopping such biopiracy is the duty of governments. Following are the plants on which controversy occurred in India, जिस पर कंट्रोवर्सी था इंडिया के साथ। First one is the basmati rice, second one turmeric and neem. Rice is being used since thousands of years in Asia agriculture histories, of which 2 lakh varieties are India's alone. इंडिया में इसकी नियर अबाउट 2 lakh varieties हैं राइस की। बासमती इज यूनिक फॉर इट्स एरोमा एंड फ्लेवर, हुज 27 varieties are cultivated in India. बासमती एक उसमें से यूनिक राइस वैरायटी है जिसमें एरोमा और फ्लेवर होता है और इसके 27 वैरायटीज़ इंडिया में कल्टीवेटेड है। एंड अमेरिकन कंपनीज राइस टेक ओन अ पेटेंट ऑन बासमती राइस लाइन्स एंड ग्राउंड्स इन 1997। जो अमेरिकन कंपनी है इसको पेटेंट कराया इन 1997। थॉट द यूएस प्लान अ पेटेंट and trademark office and allowed to sell a new variety in US and abroad.
और इसको न्यू वैरायटी के नाम से यूएस और उसके चारों तरफ इसको सेलिंग करने लगा। दिस इज़ द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती वाज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फॉर्मल वैरायटी, लेकिन यह इंडियन वैरायटी जो बासमती थी उसी की है। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद द सेमी डवार्फ वैराइटीज एंड क्लेम्ड एज ए इन्वेंशन और नोवेल्टी बाय द अमेरिकन कंपनी। ठीक है, अब अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि बासमती राइस को लेकर के उसको सेमी डवार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया और उसको उस पर अपना हक जता रहा है कि दिस इज द माई पेटेंट्स। द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट्स implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। ठीक है, इसके कारण पेटेंट के कारण अदर पीपल इसको सेलिंग नहीं कर सकता। दूसरा जो किया गया था टर्मरिक एंड नीम, इन मई 1995 द यूएस पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिसिसिपी मेडिकल सेंटर अ patent for the use of turmeric in wound healing. In 1996, another patent was granted to the firm of W.R. Grace and Co. by the European Patents Office Munich of fungicidal use of neem oil. Thus, if we do not pay attention or counter this patent application, our rich legacy will be encased by other countries and individual। ठीक है, तो हमारे कंट्री के जो मेन प्रोडक्ट है जैसे टर्मरिक है, नीम है, दूसरे कंट्री के लोग इसको हमसे रॉ मटेरियल लेके उसके डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना करके उसको हमको ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जो गवर्नमेंट है इस पर बैन करना चाहिए, उसको पेटेंट करना चाहिए और इस तरह के बाय पायरेसी को रोक लगाना चाहिए। ओके, इसी से रिलेटेड है बायो वार। वार विच फॉट बाय द बायो वेपन्स अगेंस्ट द ह्यूमंस एंड और देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायो वार्स। तो बायो वार्स दैट इज यूज इन केस ऑफ बायो वार, दैट इज द बायो वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किया जाता है ह्यूमन अगेंस्ट द ह्यूमन एज वेल एज द अगेंस्ट द एनिमल एंड plants. Viruses, bacteria and some other harmful organisms can be used biological weapons in biological warfares। तो बायोलॉजिकल वार में बायोलॉजिकल जो वेपन्स होते हैं वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस होते हैं और सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर डायरेक्टली अफेक्ट। वाई डिस्कस द बायो वेपन्स? Recently, events have put biological and chemical welfare against in the spotlights. Just like you see, that is the this time there is a war, एक तरह से ही है कोरोना वायरस। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ है, चाइना से, और अदर कंट्रीज से अफेक्टेड है। इसमें क्या होता है, हाउ कैन दैट इज अफेक्ट बायो वार एजेंट्स, कैसे यूज़ करते हैं? जस्ट लाइक यू सी हियर, तीन कैटेगरी में इसको बांटे हैं। वन इज द बायो वेपन्स, बायो वार एंड बायो वेपन्स एजेंट्स। तो बायो वेपन में या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं या काउंटेनर ऑफ दिस एजेंट्स और सुटेबल डिलीवरी ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, बायो वार में यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट टू किल ह्यूमंस, क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसका अफेक्ट क्या है वायरस में? और वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आर टॉक्सिक प्रोड्यूस्ड बाय इट एंड यूज्ड टू किल ह्यूमंस, क्रॉप एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। सो देयर इज द, जो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कोरोना वायरस, ये भी एक तरह का बायो वायरस है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। That is clear? Okay. Thank you for watching the videos. Again, thanks.